They say faces are canvases, but today's guest treats them like masterpieces. Have you ever wondered how your favorite stars look flawless even under those 4K cameras? Today, we are going straight into the source. Today, in our podcast, we will unveil the journey of a young girl who came to Adelaide 13 years ago, turned herself into a shining makeup brand, and a businesswoman that carved her own niche. Let's learn what it took for her to turn her passion into a renowned brand. When it comes to the world of makeup, styling, beauty, and transformation, one name consistently rises to the top. She is the hands behind the high-profile celebrity faces who visit Adelaide. Ladies and gentlemen, stay tuned. आज मिलेंगे मनप्रीत से from Blossom Beauty to unveil her journey. So Manpreet, thank you very much for being a part of our show. Welcome to Koshish by Divya. Thank you very much. It's a pleasure. Thanks for having me here. Absolutely welcome. So सबसे पहले तो मनप्रीत हमारे व्यूअर्स को प्लीज ये बताइए सबसे पहले तो अपने बिजनेस के बारे में ब्लॉसम ब्यूटी और आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? Sure. So Blossom Beauty is all about enhancing your natural features with a touch of glam. और मैं सर्विसेज में आई प्रोवाइड ब्राइडल, नॉन ब्राइडल, फोटोशूट, फॉर्मल अलॉन्ग विद हेयर स्टाइलिंग. सो आपको ये मेकअप का शौक बचपन से ही था या इस कोई लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया जो आपको लगा यार ये तो पैशन बनाना चाहिए अब काम को? जी ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी मेकअप करूंगी क्योंकि मुझे मेकअप का एम भी नहीं आता था. लेकिन आई थिंक एक टाइम पे हम सब लड़कियों में एक होता ही है, सबको अच्छा दिखना अच्छा लगता है ना. सो टू प्ले विद कलर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मेकअप्स. तो बस उसी चीज से मैंने रियलाइज किया कि आई थिंक दिस इज समथिंग आई एंजॉय और वो मेरी हॉबी की तरह बन गई एंड आई जस्ट लव मेकअप नाउ. दैट्स अमेजिंग. यू मेक पीपल लुक ब्यूटीफुल, मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स. दैट मीन्स अ लॉट. जी आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आई थिंक एवरी गर्ल डिजर्व्स टू लुक the best. When they look in the mirror, they should feel really confident in their own skin. That's my motto. And मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे पास आए मैं उनको खुश करके भेज सकूँ. Yeah, absolutely. एडिलेड में जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं जी, उन सबके मेकअप आप करते हो. सो यू आर प्रीटी मच अ वेरी प्रेफर्ड मेकअप आर्टिस्ट व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रिटी जब कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं. सो कुड यू प्लीज शेयर सम एग्जांपल्स ऑफ योर एक्सपीरियंसेस विद सेलिब्रिटीज और मेकअप एंड यू नो लाइट्स के हिसाब से क्या चीजें आप ध्यान में रखते हो सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट्स करने से पहले? श्योर. आई फील क्वाइट फॉर्चुनेट. तो जो मेरा पहला मेकअप था वो मैंने नीरू बाजवा जी का किया था. I was very nervous. Actually, in the beginning, I was very nervous. जब मैं enter कर रही थी room में भी, I could hear my heart beat. Pounding. I was quite nervous. But she is such a beautiful person inside out, I would say. She was talking to me very kindly and she explained very sweetly how she wanted her makeup, you know, what look she is looking for, everything. And I can never forget the sweetest gesture from her. When I was actually doing her daughter's hairstyle, she took a video, and then when I finished with her makeup and everything, I actually started getting messages and calls from my friends that, hey, did you do Neeru Bajwa's makeup? And I had no clue. I was like, yeah, but how do you know? She said no, because she posted it, like she tagged me and she posted a story. That's how I started gaining confidence that I must have done something good. That's why she was appreciating my work. And धीरे धीरे मैंने और भी आर्टिस्ट का मेकअप करा तो मेरे में अब कॉन्फिडेंस वो आ चुका था. उनके बाद मैंने निम्रत खैरा और फिर प्रंजल दहिया, कॉर्बी, सिमरन टाडली, बॉलीवुड एक्ट्रेस है हमारी मम्मियों की तो फेवरेट थी पद्मी कोल्हापुरी जी, उनका भी मेकअप करा है. और लेकिन उनका मेकअप करने में ना मुझे एक बड़ा फायदा हो गया
क्योंकि आई नेवर एक्सपेक्टेड। उन्होंने वीडियो कॉल से बात करवाई मेरी श्रद्धा कपूर से। अरे वाह जी हाँ, जो इतना अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था जी। क्योंकि आई वाज डूइंग हर हेयर एंड जब मेकअप फिनिश हो गया तो आई आस्क्ड हर कि मैम आई होप यू आर हैप्पी विद योर लुक्स। सो शी सेड या आई एम वेरी हैप्पी बट आई वांट टू शो इट टू समवन and I had no clue who she was ringing, and all of a sudden she said, hey, do you want to say hello to the girl who made me look like this? And there was Shraddha Kapoor, and I felt like I was the most happiest person on the planet that मतलब day. आपको लगा आपकी जैकपॉट ही लग गया, सेलिब्रिटीज की शावर हो रही है जी आज जी तो। जी, और श्रद्धा कपूर मेरी फेवरेट है तो जी। जी मैंने बहुत कुछ लर्न किया है उनसे। जब अगर किसी डिफरेंट स्किन्स पे काम कर रही हूँ, डिफरेंट लुक्स पे काम कर रही हूँ, तो आई माइट बी डूइंग अ गुड जॉब, इसीलिए जी। मुझे अप्रिसिएशन मिली और ऐसे ही मैंने धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस गेन करा। और आई थिंक जब आप इन बड़े आर्टिस्ट का या फिर कोई स्टेज पे परफॉर्मर है, जब आप उनका मेकअप करते हो, देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको अपने माइंड में रखनी होती है। दैट योर मेकअप शुड बी लॉन्ग लास्टिंग, स्वेट प्रूफ, बिकॉज वहां पे बहुत सारी लाइटिंग होती है, एंड इट शुड बी लिटिल एक्स्ट्रा देन नॉर्मल। ओके। या बिकॉज जब आप स्टेज पे होते हो एंड आपको बहुत सारी लाइट्स हैं, वहां पे लोग आपको बहुत दूर से देख रहे हैं, तो इट शुड बी लिटिल एक्स्ट्रा देन हाउ यू पुट योर मेकअप नॉर्मली। राइट। जैसे कई लेडीज होती हैं, हम अपने वर्क लाइफ में या गृहस्थी में इतना बिजी रहते हैं, जी ओकेजनल हम मेकअप कराते हैं किसी शादी ब्याह में, पार्टी में, जी। तो आप क्या 2-4 चीजें बताना चाहोगे जिससे मुझे पता लगे कि ये मेकअप मेरा अच्छा हुआ है, हाँ जी। ये मेकअप इतना अच्छा नहीं हुआ? आई मीन हाउ डू यू काइंड ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन अ गुड मेकअप एंड नॉट अ गुड मेकअप? For me, I think the most natural looking makeup is a good makeup. So always less is more. That's what I always feel like. And सबसे जो important चीज है वो मुझे लगता है आपकी फाउंडेशन शेड, वो चूज करना, not too light, not too dark. आप जितना भी अपनी स्किन टोन के क्लोज उसको रखोगे उतना आप नेचुरल दिखोगे। उसके अलावा आई थिंक अ वेरी प्रिसाइज्ड आईब्रोज और लैशेस कैन इंस्टेंटली लिफ्ट योर लुक। और ब्लेंडिंग इज द की इफ यू आर वर्किंग ऑन योर आई मेकअप और एनीथिंग। सो ये सब चीजें मेकअप को एक सीमलेस नेचुरल लुक देती हैं, जो कि फोटो में, वीडियो में और इन रियल में भी अच्छा लगता है। मेकअप फ्लेकी कब होता है? सो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपका स्किन प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन इज द की फॉर अ फ्लॉलेस लुकिंग मेकअप। सो अगर आपकी स्किन वेल हाइड्रेटेड नहीं है तो आप कोई भी फाउंडेशन लगा लीजिए, वो ठहरने वाला नहीं है। सो स्किन प्रेपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आप ऑयल्स को ऑयल्स के साथ मिक्स करोगे तो वो सेट बैठेगा। समटाइम्स सिलिकॉन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो और प्रोडक्ट्स के साथ अच्छे नहीं बैठते। तो आई थिंक यू हैव टू समटाइम प्ले अराउंड विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देन यू विल गेट टू नो दैट कि ये मेरी स्किन पे सूट करता है और ये चीज मेरे पे सूट नहीं करती। जब मैं कभी मेकअप कराने जाती हूँ तो मुझसे पूछा जाता है आपका स्किन टाइप कैसा है? जी। मुझे खुद ही नहीं पता मेरा स्किन टाइप कैसा है। हाँ जी। तो कैसे क्या आंसर करा जाए? जी इसके लिए देखिए हमारी 3 तरह की जो वैसे तो बहुत टाइप हम कर सकते हैं स्किन की, लेकिन जो हम हमेशा देखते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो आपको कैसे पता चले? जैसे अर्ली मॉर्निंग में अगर आप सो के उठते हो तो अगर आपके टी जोन एरिया पे बहुत ज्यादा ऑयल है, सो आप क्वाइट क्लोज हैं ऑयली स्किन की तरफ। टी मतलब ये नोज एंड दिस थिंग। जी जी। और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई फील होती है तो ऑब्वियसली इट्स अ ड्राई, जो खिंचाव है। हाँ जी। और अगर ऑयल बहुत मतलब ऑयल, देयर इज ऑयल बट थोड़ा सा ड्राई भी है, तो ये कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ स्किन आ जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप किसी भी आई थिंक किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर में अगर आप जाओ, आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। सो मैं मैका में जॉब करती थी, जैसे सिफोरा में भी होगा, यू कैन जस्ट गो देयर और वहां पे आप जाके अपना स्किन चेक करवा सकती हैं कि आपकी ड्राई है, नॉर्मल है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है। आई थिंक दैट्स अ क्वाइट गुड ऑप्शन फॉर गर्ल्स हु रियली डोंट नो कि उनकी स्किन कौन से टाइप में आती है। वाओ, सो लीडिंग मेकअप ब्रांड्स ये सर्विस फ्री ऑफर करते हैं? जी। यू जस्ट गो आस्क देम, दे विल टेल यू। जी। तब अगर मुझे कोई मेकअप आर्टिस्ट चाहिए जी, तो मुझे क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए उसमें? व्हाट मेक्स वन मेकअप आर्टिस्ट डिफरेंट देन अदर्स एज अ कस्टमर? मैं क्या देखूं? जी। तो सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। देन प्रोडक्ट क्वालिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और तीसरा आई वुड से उनका एक्सपीरियंस। जी। जी। और उसके अलावा मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो कोई एक स्टाइल फॉलो करती हैं तो वो अच्छी नहीं है, या फिर कोई ट्रेंडी कर रही है तो वो अच्छी है। आई रियली कांट से दैट। सो आई थिंक वो आपको उनके काम से पता चलेगा। सो यू हैव टू लुक एट देयर वर्क इफ दे आर डूइंग द जॉब यू आर लुकिंग फॉर, अगर वो वही स्टाइल से कर रहे हैं। जी। यू कैन लुक एट देयर पोर्टफोलियो कि ओके शी इज डूइंग द स्टाइल आई वांट टू गेट डन। सो उस हिसाब से आपको पता चलता रहता है। सुबह तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, भाग जी। दौड़ मची हुई है, बच्चे, काम, कितना कुछ। जी। 10 मिनट होते हैं तैयार होने के लिए। 10 मिनट में आपके हिसाब से हम ऐसा क्या कर लें हाँ जी। that makes us just set for the day and look really presentable? ओके। सो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि स्किन प्रेपरेशन बहुत जरूरी है, तो स्किन केयर भी बहुत जरूरी है। जी। तो आप ऑलवेज मेक श्योर करें मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद आपको सनस्क्रीन यूज करना ही करना है। सो नो मैटर व्हाट, आपको अपना सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है। मे बी इफ पॉसिबल 2 times a डे। सनस्क्रीन आपको यूज करने के बाद अगर आप मेकअप के प्रोडक्ट्स की बात करें तो मुझे लगता है एक कंसीलर आपकी, ताकि अनइवन अगर स्किन टोन है तो आप उसके हल्का सा कंसीलर लगा सकती हैं। सेकेंड थिंग आई वुड से precisely drawn eyebrows or lashes and any lip tint or lip shade. I would say I think these are the only few things that you can just put on and go anywhere. Okay, so for middle-aged women, जी। we all feel, inclusive myself, that as we age, जी। makeup starts betraying us. It's kind of very hard to keep yourself spick and span. वो fine lines आ जाती हैं, कभी कभी freckles feel होते हैं। जी। क्या करा जाए कि I know it all comes to skin care and everything, कोई ऐसी टेक्निक जो कि मिडिल एज वुमेन पे का मेकअप सस्टेन करने में हेल्प करे? ओके। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अगर एज हो रहे हैं इसीलिए आपको फाइन लाइन या टेक्सचर है, बिकॉज टेक्सचर होना इट्स वेरी नॉर्मल। तो टेक्सचर्ड स्किन पे काम करना पड़ता है। समटाइम हमें बहुत यंग लोग भी आते हैं, बहुत यंग क्लाइंट्स होते हैं, बट दे हैव टेक्सचर्ड स्किन। तो टेक्सचर्ड और रिंकल्ड स्किन पे या फिर मैच्योर स्किन पे आई कैन से कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट मेक श्योर योर स्किन इज वेल हाइड्रेटेड। Second thing, less is more. So avoid putting too much of product because later on क्या होगा, आप कितना भी उसको सेट कर लीजिए वो क्रीजेस में क्रीज करेगा ही करेगा। It might look very cakey after some time. Doesn't matter how much you set it. तो वो एक चीज अवॉइड करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन सारी प्रॉब्लमेटिक स्किन पे जितना आप कम प्रोडक्ट यूज करेंगे उतना ज्यादा वो अच्छा दिखेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। ओके। साउथ ऑस्ट्रेलिया में अगर एक लड़की या औरत के बैग में जी टॉप 3 चीजें वो क्या होनी चाहिए जो कि मतलब एब्सोल्यूट मस्ट हैं मेकअप वाइज, और जो थोड़ी सी करने से ही काफी इम्पैक्ट होता है, क्या आपका क्या सजेशन है? सो आप एक स्किन टिंट कैरी कर सकती हैं। स्किन टिंट क्या होता है? जो स्किन टिंट होता है ये बहुत ज्यादा आपको कवरेज नहीं देगा, लेकिन ये आपको हाइड्रेशन देता है। कई स्किन टिंट्स में SPF भी होता है, सो यू आर गेटिंग प्रोटेक्शन एज वेल फ्रॉम सन। एंड दूसरा इसमें थोड़ा सा टिंट होता है, लाइक इट विल गिव यू अ टिंट, नॉट अ फुल कवरेज। ओके। सो अगर आपको जैसे एवरी डे के लिए यूज करना है तो यू कैन यूज दैट। और उसके अलावा मुझे लगता है एक चीक और लिप टिंट, नाउ डेज तो यू कैन गेट बोथ इन वन बॉटल। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लिप और चीक टिंट एक ही बॉटल में मिल जाते हैं। ओके। एंड थर्ड वुड बी आईब्रोज फॉर मी और अ मस्कारा। ओके। सो मनप्रीत, आपको यहाँ पे एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में या इमिग्रेशन लाइफ जीते हुए कितना टाइम हो गया? मैं यहाँ पे 2013 में आई थी, तो सो नियरली 13 साल हो गए हैं मुझे। 13 साल हो गए जी। जब एक लेडी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ सोचती है कि कुछ करा जाए बिजनेस, जी। किस तरह के चैलेंजेस आए आपको? आपने कैसे ओवरकम किए? हाँ कभी लाइफ में ऐसा हुआ कि लगा कि छोड़ो यार, क्यों ही करना है, बहुत हाँ सर जी, दर्द हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे। जब हम स्टूडेंट वीजास पे यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आप पे, क्योंकि आपको अर्न भी करना है, आपको अपनी फीस भी पे करनी है, आपको घर भी संभालना है। हम लड़कियों के लिए तो घर भी संभालना है हमें। आई बिकेम अ मदर व्हेन आई वाज 23, तो मेरे लिए तो और भी ये ज्यादा चैलेंजिंग था। काम भी करना है, बच्चा भी है, और मुझे मेकअप भी सीखना था।
तो अब चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, लेकिन मुझे हम्म। लगता है कि वुमेन आर क्वाइट स्ट्रांग, स्पेशली व्हेन जब हम्म। हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हमें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट रूप देखने को मिलता है। हाँ जी। जी, यू फैस यू लेकिन एट टाइम्स वी एंड अप सरप्राइजिंग आवरसेल्व्स जी, कि अच्छा जी। हम ये भी कर सकते थे। हाँ जी, हो गया। हाँ जी। जी, जी, जी। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है आपकी फैमिली की सपोर्ट होनी। तो अगर हम्म। आपके पास एक सपोर्टिव हस्बैंड या फिर सपोर्टिव फैमिली है, तो आप कुछ हम्म। भी अचीव कर सकती हैं। क्योंकि आजकल जैसे जब आपने मेकअप सीखा हुँ। तो कुछ 2 या 3 तरह के बहुत ट्रेंडिंग मेकअप स्टाइल्स हैं, क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, मतलब पता होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है कि नेचुरल मेकअप और सॉफ्ट ग्लैम आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, और रेडिएंट ड्यूई स्किन इज़ इन हम्म। ट्रेंड नाउअडेज़। जितना आपका नेचुरल और ड्यूई, हम्म। ग्लोई, रेडिएंट मेकअप दिखता है, वो उतना ही अच्छा। आई थिंक आजकल यही ज़्यादातर इन ट्रेंड है। एयर ब्रश मेकअप क्या होता है? हाँ जी। एयर ब्रश मेकअप में एक एयर ब्रश गन आती है, उसमें आप लिक्विड फाउंडेशन डालते हैं ओह। और उससे फिर आप धीरे-धीरे काम करते हैं अपनी स्किन पे। तो वो उन लोगों के पे बहुत अच्छा वर्क करता है जिनको बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए, ओके। जिनको बहुत नेचुरल लुकिंग लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए। स्पेशली आई थिंक ब्राइड्स के लिए इट वर्क्स हम्म। रियली वेल। ओके। भी 13 साल, अराउंड 13 साल आपने यहाँ पे निकाले हैं। जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर यू सी a young girl or हुँ, even a young boy या immigrating to this country who हुँ, want to follow their passion, follow their dreams, हुँ, in addition to handling the day-to-day chaos, हुँ। what's your message that you would like to give to them? I would say believe in your skills and stay consistent Hmm. and don't be afraid to start small. Hmm. सो ये मत सोचिए कि आज मेरे पास सिर्फ एक क्लाइंट आ रहा है, मेरा काम ज़्यादा नहीं चल रहा, मेरा ये, लेकिन बट स्टे कंसिस्टेंट। लोग आपका वर्क धीरे-धीरे एप्रिशिएट करेंगे ही। आपको लगता है कि एक कोई सही एज होती है अपना काम शुरू करने की, या यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग लाइक नो, आई डोंट थिंक सो, आई दैट? डोंट ओके। थिंक सो। आई थिंक आप किसी भी एज में ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। जो चीज़ आपको खुशी देती है, हम्म। वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। चाहे उसको आप 1 घंटा दीजिए, चाहे आप उसको अपना पैशन बना लीजिए, वर्क बना लीजिए, लेकिन डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। कोई एक ऐसा कस्टमर जी, जो आपको हमेशा याद आता है, जो कुछ रिलेटेड टू मेकअप कुछ जी। ऐसा सिखा के चला गया, या कुछ काइंडनेस का ऐसा जेस्चर करके चला जाए, या हुँ। कोई ऐसी बात आपको बोल के चला जाए जो चला गया जो आपको आज भी याद है? हाँ जी, देखिए आई एम क्वाइट लकी। मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे उन्होंने मेरा काम हमेशा ही बड़ा एप्रिशिएट करा है, एंड आई हैव क्लाइंट्स जो पिछले 4-5 साल से कंसिस्टेंटली मेरे पास आ रहे हैं। हम्म। बट जी हाँ, एक बार एक लेडी आई थी मेरे पास, शी वाज़ इन हर 40s। हम्म। तो शी वाज़ उनकी थोड़ी डस्की स्किन थी, हम्म। तो वो अनकंफर्टेबल थी अपनी स्किन में, पहले से ही थोड़ी एक्ने प्रोन हम्म। स्किन थी, एंड इट वाज़ हर 40th बर्थडे। तो ओह। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने कभी मेकअप नहीं करवाया है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पे मेकअप कभी अच्छा ही नहीं लगेगा। तो मैंने ओके। उनको बोला इट्स नॉट लाइक दैट, यू गॉट रियली नाइस, मतलब शार्प फीचर्स थे उनके। तो हम्म। मैंने उनको बोला कि आप मुझे चांस दीजिए, आप बैठिए। तो मैं उनका मैंने बिफोर लिया पिक्चर, एंड देन उनकी पूरी लुक होने के बाद मैंने उनको मिरर दिखाया उनका, एंड शी कुडंट बिलीव इट वाज हर। तो हाँ। मतलब 2 दिन वो मुझे मैसेजेस करती रही कि मनप्रीत पार्टी में मैं बता नहीं सकती, आई वाज बॉम्बार्डेड विद सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स। लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे थे कि तुम कितनी अच्छी दिख सकती हो मेकअप से। या। सो मेकअप इज नॉट अ मास्क टू हाइड योर इम्परफेक्शंस। कभी भी आप ऐसा नहीं सोचिए कि आप मेकअप इसीलिए लगा रहे हो या कुछ चीज को छुपाने के लिए लगा रहे हो। आई थिंक आप कॉन्फिडेंस आपको फील होना चाहिए, चाहे आप मिनिमल मेकअप यूज करिए, चाहे आप पूरा ग्लैम मेकअप करना चाहते हैं। इट शुड ऑलवेज बी योर चॉइस कि आपको कैसा दिखना है। आप खुश हैं, दैट्स इट। आई थिंक इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात बोली है आपने कि मेकअप इज नॉट to hide your जी, imperfections, it's to जी, enhance what जी, you already have. बिल्कुल, बिल्कुल। Yeah, that's amazing. कोई customer wants to get in touch with you, जी, how can they contact you? तो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है ब्लॉसम ब्यूटी बाय मनप्रीत, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जो कि आप लिंक कर सकती हैं डाउन देयर। जी। Absolutely. Viewers, so if you want to reach out to Manpreet at any stage, all her contact details, including her Insta page, her professional contact details, everything will be in the bio.
On that note, Manpreet, I would like to genuinely thank you a lot. No, thank you very much for having me here. And have a lovely rest of the day, everyone. Bye. Bye.